نیشنل کمپنی ہے جس نے اس کو ٹیکنیکلی ایویلویٹ کیا. اگر اس کو ایویلویٹ، میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، اگر میں ایویلویٹ کرنا ہی نہیں جانتا اور میں کہوں جی آپ اے کو نہیں بی کو دیں اور سی کو دیں تو میرے انٹرسٹ نظر آتے ہیں. لیکن ہم اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، منسٹری انڈیپینڈنٹ ہے، ایون دو پرائم منسٹر صاحب بھی انڈیپینڈنٹ ہے. اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں جیسے میں نے آپ کو فرمایا وابڈا ہے، اس کے بعد بھی کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ کسی کو کانٹریکٹ دے سکے. تو ہم بڑے کلیئر اور اسٹریٹ ہیڈڈ ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اس کو کنٹروورشل بنایا گیا اور اس کو بھی میرٹ پہ چائنا غضوبہ تھی اور ایک چائنا پاور تھی جنہوں نے بٹ کیا تھا. اس میں ریکمنڈیشن نیسپا کی اور 2 فورن کمپنیز کی ایز ایکسپرٹس ان کے لیے تھی، اور میرٹ پہ جس نے کوالیفائی کیا اس نے کوالیفائی کر لیا. تو اس پہ کنٹروورسی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیونکہ رزاق داؤد صاحب کا نام آ رہا تھا تو یہ میرا کام تھا کہ میں اس کو کلیئر کروں کہ ایک تھرڈ پارٹی کا نام بھی یوز کیا جا رہا ہے اور مس یوز کیا جا رہا ہے، پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ اگر کانٹریکٹ کی آپ ڈیٹس دیکھیں تو وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو اگر ہم گورنمنٹ میں آئے نہیں تھے اور ایک کانٹریکٹ بڈ ہو چکا تھا اور اس میں پارٹیسپیٹ کر چکے تھے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. دوسری چیز جس پہ میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹلی وہ یہ کہ محمد ڈیم ایک تو اپنے ٹائم سے پہلے شروع بھی ہو رہا ہے اور ٹائم سے پہلے ہم نے پلان کیا کہ اس کو ہم ختم بھی کریں گے. ہم پرانی گورنمنٹ کی طرح 10 دفعہ افتتاح نہیں کریں گے. اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کنٹروورسیز ہیں، یہ کنٹروورسیز کی جا رہی ہیں کیونکہ بہت ساری انٹرنیشنل فورسز نہیں چاہتی کہ یہ ڈیم بنے اور جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. اور ایک میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے تحت ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑے کلیئرلی کہ ایک آدمی جو پریسیڈنٹ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، وہ یہ کہ آپ کسی کو بھی بلاتے ہیں اگر اپنا ویو دینے کے لیے، اپنا سجیشن دینے کے لیے یا اوور سائٹ کرنے کے لیے، تو آپ 15 سے 20 دن کا طریقہ کار موجود ہے. میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ مجھے اگر 1 دن کا نوٹس دے گا کوئی اور وہ بھی جیل سے مجرم آئے گا یا ملزم کہہ لیں اس کو، آپ کو وہ آگے سوال جواب کرے گا اور ہیرو بن کے کہے گا یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے میں نہیں دوں گا. جو پی ایس سی کا کام ہے وہ کام ہم کرنے بھی دے رہے ہیں اور ہم اس کے پابند بھی ہیں اس کو انفارم کرنے کے. لیکن اگر منڈے مارننگ کو میری منسٹری میں خط آئے گا کہ ٹیوزڈے کو وہ آ کے جواب دے ہوں اور وہ ڈرامہ کرے شہباز شریف، تو میں وہ برداشت نہیں کروں گا، نہ میری منسٹری اپیئر ہوگی. میں نے آج ڈائریکشنز دی ہے کہ کوئی بھی شارٹ نوٹس جو آج تک نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری کے اندر، اگر کوئی ڈرامہ کرنے والا وہ بھی مجرم جیل سے نکل کے آئے آ کے ہم سے سوال کرے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ ایک مجرم کو ہم جواب دے رہے ہیں. چلیں جی کیونکہ سیاست کا نام یہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن میں 1 دن کے نوٹس پہ کسی صورت میں نہ اپیئر ہوں گا، نہ میری منسٹری جواب دے گی. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں کسی کے باپ کا نوکر ہے، غلام نہیں ہوں کہ پی ایس سی نے کہہ دیا تو کوئی آسمانی فرمان میرے پر نعوذ باللہ آ گیا. یہ میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور پولیٹیکل سکور کرنے میں نہیں دوں گا. جو ڈرامے بازی پچھلے دنوں ہو رہی ہے پی ایس سی کے اندر کہ لوگوں کو پیچھے بٹھا کر یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا، تو تم نے سب سے پہلے چوری کی ہے، تم نے سب سے پہلے بےایمانی کی ہے، تم سب سے پہلے فراڈ کیا ملک کے ساتھ. اس کا جواب دو اور پھر ہمیں اپنی پروگریس بتاؤ. ہمیں تمہاری پروگریس پتہ ہے جبھی تم آج جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا تھا. یہ 2 چیزوں کے لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی تھی کہ میں آ کے آپ لوگوں سے اس چیز کو ایڈریس کروں اور آپ کے توسط سے آگے پہنچا سکوں. کوئی ایکسپرٹ اس کو ایوالویٹ کرتا تھا، تب آپ نے اور آپ کی پارٹی اس کو بڑی کوسچنیبل اوپینین دیتی تھی کہ جی آپ نے صحیح ایوال نہیں کیا. اور آج بھی آپ کے وہ جو پروجیکٹ ہے آلریڈی انویسٹیگیشن آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز اس وقت جائز تھی وہ اس وقت یا اس وقت ناجائز تھی اب جائز ہے؟ یہ سوال میں ڈان سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا اور میں آپ ڈان کو اس کا جواب بھی دینا پسند کروں گا. میری پیدائش سے پہلے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جب میری گورنمنٹ ان پلیس نہیں تھی اور کانٹریکٹس کی بڈنگ ہو چکی تھی اور کانٹریکٹ سبمٹ ہو چکے تھے بڈرز کی، تو میں اس کا جواب دے کیسے ہوتا ہوں یا میری گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کے اندر کوئی کنٹروورسی نظر آ رہی تھی یا نظر آ رہی ہے یا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی، تو اوپن ہے. آپ نے جو چیزیں جس طریقے سے جس نے کرنی ہے وہ کر لیں انویسٹیگیٹ. ہمیں تو کسی چیز کا اعتراض نہیں کسی چیز کا. لیکن آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جی ملک بننے سے پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرا والد کالج میں تھا، اس کا جواب میں دوں، اور جنگ کے اندر کس نے کیا کیا تھا، تو یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہو، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے. لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کوئی جواب دوں. کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک پہ اٹھا کے ادھر کر دیتا. آگے جی. بہت شکریہ.
देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर, मैं इस बात पर आपसे माजरत ये कर लेता हूँ। मेरी माजरत नहीं, मेरी बात सुने, मैंने सीनियर का लिहाज किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चले मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे, ठीक है, मैं माजरत कर लेता हूँ, मेरे वालिद ही गए, ठीक है, देखिए मेरी बात मैंने माजरत कर ली, नहीं मेरी नहीं, देखिए मेरी आप, मैं सहाफ़ी मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं। वफाकी वज़ीर फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और वहाँ पर अभी कुछ बदनज़मी भी देखने में आई और उनकी जानिब से कहना था कि 13 जनवरी को मोहम्मद डैम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वक्त से पहले ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और टाइम से पहले इसे मुकम्मल भी करके दिखाएंगे। बिल्कुल, उनका कहना था कि 13 जनवरी को मोहम्मद डैम का इफ्तिताह करेंगे। ये भी आप मनाजिर देख सकते हैं जहाँ पर सहाफ़ी के सवाल पर फैसल बावडा की जानिब से कहा गया था कि ये आपने सवाल किया, मैंने इसलिए जवाब दिया, वरना कोई और होता तो मैं माइक साइड पे कर देता। इससे पहले भी एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इस जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, जिस पर सहाफ़ियों की जानिब से रद्द अमल का इजहार किया गया है और एहतजाजन सहाफ़ी यहां से अब बाहर जा रहे हैं। फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी देखने में आई, बदमज़गी देखने में आई तब जब फैसल बावडा की जानिब से सहाफ़ी का जवाब ना देने के हवाले से कहा गया और इस पर सहाफ़ियों ने एहतजाजन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी और यहाँ से बाहर निकल रहे थे। जब फैसल बावडा की जानिब से भी उनसे माजरत भी की गई, उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई और ये कहा गया कि सहाफ़ी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ियों की जानिब से अभी यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि फैसल बावडा की जानिब से कुछ सख्त रवैया देखा गया, उनकी जानिब सख्त रद्दअमल दिया गया, जिस पर सहाफ़ी बरादरी जो है वो भी सलाह पर एहतजाज बन गई और फैसल बावडा वफाकी वज़ीर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया गया, जिसके बाद फैसल बावडा की जानिब से सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की गई। फ़ौरन ही उनकी जानिब से वफाकी वज़ीर की जानिब से माजरत की गई, लेकिन सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। फैसल बावडा से जब सवाल किया गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये सवाल आपने किया है, आप चूँकि उम्र में मेरे से बड़े हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया है, लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं जवाब भी ना देता और आपका माइक हटाकर भी मैं साइड पर रख देता था, जिस पर सहाफ़ी बरादरी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और फैसल बावडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनकी जानिब से बाइकआउट भी किया गया और अभी हम देख सकते हैं कि फैसल बावडा सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जानिब से मोहम्मद डैम के हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ब्रीफिंग दी जा रही थी, लेकिन जब एक सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल किया गया तो गुस्से का इजहार किया गया फैसल बावडा की जानिब से, जिस पर अब सहाफ़ी बरादरी की जानिब से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनकी जानिब से बाइकआउट किया गया। फैसल बावडा की जानिब से जो माफ़ी मांगी गई, जो माजरत की गई, उसके हवाले से भी उनकी जानिब से उसको भी कबूल नहीं किया गया। मुदस्सिर अली राना जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर अब क्या सूरत हाल है। मुदस्सिर अली राना बताएगा, सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट किया गया, फैसल बावडा की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिश की गई, तो अभी क्या सूरत हाल है, क्या सहाफ़ी मान गए हैं? जी, यहाँ पर मामला इस तरह से पेश आया है कि वफाकी वजीर जो वाटर हैं फैसल बावडा, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनकी जानिब से सवाल किए जाने पर उनका जो जवाब था वो गुस्से में जवाब था और उन्होंने सहाफ़ी को जो है वो एक लफ्जों में जो है ना वो तज़हीक अमेज जवाब दिया है, जिसके बाद यहाँ पर सहाफ़ियों ने अपना एहतजाज किया है और जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसका एहतजाज करते हुए बाइकाट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो वफाकी वजीर है फैसल बावडा साहब, उनकी जानिब से माजरत की गई है, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से ये बारहा कहा गया है कि जो इतलात के मिनिस्टर हैं और इसके अलावा जो वाटर के मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार जो है ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसके बाद अब जो है ये नहीं चल सकेगा और हम आइंदा के लिए जो है वो भी इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करते हैं, क्योंकि आइंदा भी और जो गुज़श्ता दौरानिया में देखने में आया है कि इसी तरह से जो वो सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी का रवैया जो वो इख्तियार किया जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा मुदस्सिर, इससे पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी तब भी फैसल बावडा का रवैया कुछ ऐसा ही था। जब उन्होंने PAC के इजलास के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, फिर उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा मैं इसका जवाब दे नहीं हूँ और तीसरी बार जब उनसे एक सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने ही सवाल किया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। उनका रवैया कुछ सख्त नहीं था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
जी इसी तरह है कि पहले तो उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन लीडर हैं और जो चेयरमैन हैं पीएससी कमेटी के शहबाज शरीफ, उनको उन्होंने कहा है कि वो मुलजिम है, मुजरिम है, और उन्होंने मुझे नोटिस भेजा है कि आके कमेटी को ब्रीफ किया जाए। तो मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, ये अल्फाज थे वफाकी वजीर फैसल वावड़ा के मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि एक दिन के नोटिस पर आकर कमेटी को ब्रीफिंग दूं, और ना ही इस तरह से मेरे जो कमेटी के मेंबरान है वो जो है पीएससी में शिरकत के लिए आएंगे। तो इसके साथ साथ ही जो एक मामला उन्होंने ये भी कहा है, और इसके साथ ही जो दूसरा मामला आया है कि जो रज़ाक दाऊद है मुशीर तिजारत, उनकी जो कंपनी है डेस्कॉन, जिसको मोहम्मद डैम का ठेका दिया गया है, तो उस पर भी उन्होंने जो है ना खासा तलखी में जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने उस कंपनी से रिजाइन कर चुके हैं और उनका उस कंपनी में शेयर नहीं है। ताहम ये जो रिजाइन की बात है, ये रिजाइन उन्होंने जो मुशीर तिजारत है अब्दुल रज़ाक दाऊद, उन्होंने कुछ अर्सा कबल ही दिया है। ताहाल भी जो बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि डेस्कॉन में जो मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के बेटे के ताहाल शेयर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट किया है और साथ में उन्होंने अपोजिशन लीडर को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और फिर एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी जानिब से सवाल किया गया है, तो उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ भी जो उनका रवैया था वो तज़ीक आमेज उनका रवैया था। तो इस जारहाना रवैये की वजह कुछ सामने आ सकी है? मुदस्सिर, इतना जारहाना अंदाज आज क्यों अपनाए बैठे थे वफाकी वजीर? वफाकी वजीर जब आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उनके जो शुरू के अल्फाज थे और उन्होंने बात का आगाज ही यहाँ से किया है कि अपोजिशन लीडर को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए, और साथ में उन्होंने डेस्कॉन अब्दुल रज़ाक दाऊद के जो गुज़िश्ता कंपनी थी उसको उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए, साथ ही उनका जो रवैया था वो इस तरह जो है वो खराब हो गया, और उसके साथ जो अल्फाजों में जो किसी के लिए तज़ीक आमेज अल्फाज थे वो कदरे जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने वो शॉर्ट कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है तो उनसे सवाल किया गया है सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से, जिसके मुतालिक उनका जवाब जो है वो क्या सवाल था वो जिस पर फैसल वावड़ा ने ऐसा जवाब दिया? सवाल ये किया गया था सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से कि जो बिडिंग का अमल है उसमें कितना अरसा कबल ये जो बिडिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया था, जबकि जो डेस्कॉन को, क्योंकि डेस्कॉन और जो चाइना की जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जिसको मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इनके मुतालिक इसका सवाल किया गया था कि ये जो बिडिंग की गई है इसमें शफाफियत के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया है, आया कि जो डेस्कॉन के जो शेयर हैं अभी भी रज़ाक दाऊद उनके शराकतदार हैं या नहीं। इस हवाले से ये सवाल किया गया था, जिस पर जो वफाकी वजीर की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है, और उनकी जानिब से सीनियर जर्नलिस्ट के अलावा बाकी तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी कहा गया है कि मैं यहाँ पर किसी के ऐसे फजूल सवालात के जवाब नहीं दूंगा। और जब क्योंकि ये डॉन न्यूज के सहाफी थे, सीनियर सहाफी थे जिनकी जानिब से ये सवाल किया गया, तो उन्होंने डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मैं आपके चैनल से या आपके जो प्लेटफॉर्म है उससे इसी तरह का सवाल मुतवक्के कर सकता था, जिसके बाद उन्होंने आगे से जो उनका जवाब था वफाकी वजीर जो है फैसल वावड़ा, उनकी जानिब से जो सवाल वो खासा तज़ीक आमेज था, जिस पर सहाफियों ने अपना एहतजाज सहाफियों ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। मुदस्सिर, यहाँ पर हमें ये भी बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म कर दी गई है वफाकी वजीर की जानिब से, तो ये जानना चाहूंगा खत्म की गई या सहाफियों के बाइकआउट की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी, उसको आगे चला ही नहीं सकते थे वो? जी बिल्कुल, सहाफियों का एहतजाज था तो वो इसके बायस जो है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी है। वफाकी वजीर ने गो के कहा है कि मैं माजरत करता हूं, लेकिन क्योंकि इससे कबल भी देखने में आया है कि माजी में इस तरह के जो वाकयात होते रहे हैं, वजीर इत्तलात की जानिब से जो आज वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल का भी मामला इसी तरह से पेश आया है, तो सहाफियों की जानिब से ये कहा गया है कि मुतअद्दिद बार जो है वफाकी वज़रा का जो रवैया वो इसी तरह से इख्तियार किया जाता है, लिहाजा वफाकी वजीर ने माजरत की है, लेकिन सहाफियों ने उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया और जिसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस का जो है वो बाइकाट कर दिया है। फैसल वावड़ा ने ये भी कहा है कि जो जिन जर्नलिस्ट के साथ मेरा रवैया इस तरह का है मैं उनसे माजरत करता हूं, लेकिन उस वक्त तक जो जर्नलिस्ट है वो कुछ जो वो चले गए थे। और तो मुदस्सिर, बारहा हमने देखा है, फुटेज में भी देख रहे हैं कि उनकी जानिब से एक एक करके सहाफियों के पास जा रहे हैं वफाकी वजीर, वो माफी मांग रहे हैं सबसे। आपने मुदस्सिर हमें अपडेट किया, आपका